Good morning to all viewers. Today, I am going to teach you the late antiquity in the Roman Empire, which covers the 4th century to the 7th century piece. 4th century AD to the 7th century AD. One thing I have to do is just a little bit. I want. I have seen that you people are and students are not attending the class sincerely. What may be their causes, I don't know. But your enrollment accordingly, आप क्लास बैठते नहीं क्योंकि मेरे पास आई हैव द रिपोर्ट आई सी ऑल द थिंग्स और दिस विल बी द वेरी हार्मफुल फॉर योर स्टडी you should regular listen with your NCRT books, come and sit with your NCRT books and read out and listen to me. You should regularly attend your class because we have no the direct class. That's why if you miss your class and neglect your class anyway, that will now you have to be the uh, suffered for later on. इसलिए मैं आपको बार बार मैं देखता हूँ आई व्यूवर्स में देखता हूँ एवरी डे आई जस्ट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर आप चाहे सोशोलॉजी के हो मेरे कॉम्बिनेशंस में या हिस्ट्री के यू मस्ट अटेंड द क्लास आप क्लास अटेंड करिए लिशन एंड देन रीड आउट योर बुक्स दैट इज द सफिशियंट फॉर यू आप समझे सब्जेक्ट मैटर्स को बुक्स पढ़िए उसको समझिए लेक्चर सुनिए उसको आप समझिए और उसके बाद पढ़िए वो रिलेट करिए चीज़ों को समझिए उसको दैट इज दिस देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू लेकिन आप देखेंगे ही नहीं आप बैठते ही नहीं है टाइम से क्लास में अटेंड ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा मैंने देखा आई एम वेरी फेड अप ये क्या है व्हाट इज दिस देखा पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग दैट शुरू में तो बैठे स्टिंग वॉज वेरी गुड लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोग जब ये हाल है व्हाट विल डू स्टूडेंट्स you be regular and work hard there is no other way except working hard कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोग आप मेहनत करिए हम मेहनत कर रहे हैं और सभी मिलकर टुगेदर यू हैव टू बी द मेक mark and trace the mark high mark understand Rome was not built in a day it took a very long time and hard work व्यूअर्स ज़्यादा होना चाहिए मैं देखूंगा मैं वॉच कर रहा हूँ मैं कंपैरेटिवली देख रहा हूँ कितने लोग बैठ रहे हैं ऑलवेज आई मेरी नज़र है लगातार एवरी डे मैं वॉच करता हूँ कितने आप बैठे कितने नहीं कभी कभी तो बहुत ही कम डिटेल्स बैठते हैं 5-8 तक बैठे हैं कभी टाइम 6 ये क्या है ओके दिस इज माई एडवाइस टू यू मस्ट सीट एंड for the lectures. Okay, students, today we are going to study the antiquity of the Roman Empire. This range from the 4th century to the 7th century. But during this century, a tremendous progress happened in the all walk of the life. And now, the first under this uh, topic, we shall see the achievements of Diocletians. Diocletian's achievements. Now he now held the power in the years 284 AD, and now during his time, by then the Roman Empire had just made its expansion, substantial expansion,
एक worth expansions they had, very large expansion, and more or Diocletians now held that many of the territories included the large Roman empires were a little strategic and the economic value. इसने ये देखा, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया कि बहुत से जो रोमन टेरिटोरीज हैं, वास्ट इन द रोमन एम्पायर में वास्ट टेरिटोरीज थे, आप जानते हैं, 3 continents were under this control empire. So ye now saw that some of the lands under the control are the strategically is no value and the economically not fruitful. He now observed after that, so he abandoned his authority over such टेरिटोरी, ऐसे टेरिटोरीज को इसने अपनी ऑथोरिटीज को एबंडन कर दिया. ही डिड नॉट टुक द इंटरेस्ट एट ऑल, बिल्कुल. एंड नाउ ही इज concentrated or in fact not expansion, or he did not follow the policy of expansion of the empire. अपने एम्पायर को टेरिटोरियल एक्सपेंशन को करने की पॉलिसी इसने नहीं अडॉप्ट की. He now adopted the policy of consolidating, bring the stability in the empire rather the expansion of the empire. इसने ये पॉलिसी अपनाया डायोक्लेशियंस. और इसके अंडर दिस से ही इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स. तो फॉर दिस रीजन इसने बहुत से रिफॉर्म्स इसने ही इंट्रोड्यूस्ड और अचीव द ऑब्जेक्टिविटी. फर्स्ट इसने क्या किया कि ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू द 4 ऑटोनोमस पार्ट्स. इसने पूरे एम्पायर्स को 4 ऑटोनोमस पार्ट्स में डिवाइड किया. ऑटोनोमस मीन्स the part which has been divided, so that the ruler of that part would be the autonomous in power, exercising the power in that area. वो अपने एरिया में पावर एक्सरसाइज करेगा. तो दिस वाज द गिवन एट दैट. सेकेंड थिंग वाज दैट ही डिवाइडेड 4 पार्ट्स में स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनोमस. 4 रूलर्स वेयर अपॉइंटेड. इसके लिए उसने क्या किया कि 4 रूलर्स अपॉइंट किया और ईच पार्ट वाज प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रूलर. हर 4 पार्ट्स को डिवाइड किया. ईच पार्ट वाज जस्ट हेल्ड बाय वन रूलर. एंड नाउ फर्स्ट द ही डायोक्लेशियन से हेल्ड द चार्ज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट. जो रोमन एम्पायर्स का जो ईस्टर्न पार्ट था, विच निकोमेडिया included the Thrace, Egypt, Anatolia, West Asia. Means eastern part of the empire, Roman Empire, was held by himself. Himself held under his control. And इसमें था Thrace, Egypt, Anatolia और West Asia. Second, Maximian had Italy. Maximian को उसने दिया इटली, नॉर्थ अफ्रीका अंडर ही. इटली और नॉर्थ अफ्रीका को उसने मैक्सिमियंस को उसने डिवाइड किया. नेक्स्ट उसका जो पार्ट है कॉन्स्टेंटिनियस एडमिनिस्टर्ड. जो उसका अदर रूलर था कॉन्स्टेंटिनियस, उसे उसने एडमिनिस्ट्रेट दिया गॉल, जिसे हम फ्रांस कहते हैं, स्पेन, ब्रिटेन और ब्रिटेन. ये एरिया जो है वेस्ट यूरोप का एरिया, that was given to the Constantinius. Third, next है Galerius. Galerius ruled over the Illyricums, मैसेडोनिया और ग्रीस. ये इलाका जो है मेडिटेरियन से आइलैंड्स के, ये यहाँ पे इसको गैलेरियस को दिया गया. ईच रूलर वाज सुप्रीम विद द जुरिडिक्शन. अपने पावर में, जुरिडिक्शन में, ईच वन वाज द रूलर वाज द सुप्रीम इन हिज ऑटोनोमस पावर. जुरिडिक्शन उनका था, अपना अधिकार क्षेत्र था उनका, अपनी जुरिडिक्शंस. तो ओवरऑल पॉलिसीज फॉर होल एम्पायर लेड डाउन बाय द डायोक्लेशियन हिमसेल्फ. लेकिन पूरे एम्पायर का ओवरऑल 4 एम्पायर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबको ऑटोनोमस रूल करने के लिए अपने जुरिडिक्शंस में लेफ्ट आउट.
or overall policy and programs for the empire was made by him. He himself laid down the all the policies और and policies of the empire के बारे में जितनी policies थी, he himself used to take that. And moreover, now further he just state further policies was that Nicholas forcefully personality avoided rivalry among the four and the functions of the empire went smoothly. इसने जो फोर्सफुल पर्सनालिटी अवॉइडेड राइवलरी, इसने क्या किया कि अपनी फोर्स से, अपनी फोर्सफुल पर्सनालिटी से इनके बीच में कोई राइवलरी क्रॉप अप नहीं होने दिया, क्योंकि ये इतना फोर्सफुल था कि नॉट ए जिस these rulers understand dare to have falling in their mutual rivalries. No, उसने अवॉइड किया इस चीज को, और he tried by his own forceful personality, अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से उसने इस चीज को अवॉइड किया. नेक्स्ट थिंग है इसने कि स्टेट के गॉट एक्सपेंडेड रेन ऑफ डिक्लेरेशन, क्या ही ऑर्डर्ड, उसमें आगे इसने मेजर्स लिया कि ही ऑर्डर्ड सेंसस टू बी द कैरिड आउट, और उसने सेंसस कराया. सेंसस मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, अंडरस्टैंड, ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन द टेरिटोरी और द एम्पायर. तो इसने उसका क्या किया, व्हाट डिड ही, उसने सेंसस कराया और कैरिड आउट एस्टिमेट क्वेंटम ऑफ एग्रीगेरियन टैक्स पेएबल टू द स्टेट, और उससे जो एग्रीगेरियन इलाका था उसका उसने सेंसस कराया कि टैक्स पेएबल. दूसरी बात, स्ट्रेंथन द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन, और इससे क्या हुआ कि उसने कलेक्शन कराया कि टैक्स कलेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि कोई इवेड ना करे टैक्स को, कोई बचे नहीं, सभी उसका जो कैलकुलेटेड हो टैक्स प्रॉपरली हो, और उतने पॉपुलेशन पर जितने टैक्स उसके रिक्वायरमेंट्स है वो उसके पास फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एक्टिविटीज. दिस वाज द मोर ओवर further empire, the state activities got expanded. He or census हुआ. Second thing है, taxes had to be the paid in kind. दूसरी बात, taxes were not taken in the cash, it was paid in the kind से, कोई वस्तु में या गुड्स में, काइंड्स का मतलब होता है किसी गुड्स के रूप में ही टैक्स लिए जाते थे. और ही मेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मोर कॉम्पैक्ट बाय कार्विंग आउट द स्मॉलर प्रोविंसेस. इसने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशंस को और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, यानी कि और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंटेंसिफाई करने के लिए प्रोविंसेस को और संख्या बढ़ा दी. जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट में स्टेट उसको कंट्रोल करना नहीं उतना इफेक्टिव करेगा जितना कि हाँ, अगर इफेक्टिवली उस पर रूल करना है या इफेक्टिवली कंट्रोल करना है सिचुएशन को, तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर दो डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट रहेगा, छोटा रहेगा, तो कॉम्पैक्ट, तो जितना हम डिवीजन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अच्छा होता है. क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे वास्ट एम्पायर, तो वो एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो उसने क्या किया कि ये इंटेंसिफाई किया, उसने डिवाइड कर दिया और अधिक गवर्नर्स की संख्या बढ़ाया, नंबर्स ऑफ गवर्नर्स से, एंड कॉन्सिक्वेंटली नंबर ऑफ प्रोविंसेस वाज डबल्ड कर दिया उसने, और मोर गवर्नर्स, एंड it made the tax collection more efficient and reduced the powers of the provincial governors. और इससे क्या हुआ कि जो provincial governors के जो पावर है वो कम हुए, और टैक्स कलेक्शन में उसको स्मूथली ही collected the tax, और टैक्स कलेक्शन आराम से और इजिली वो किया, और divested many of their duties. More, the frontiers of the empires were fortified. इसने नेक्स्ट स्टेप लिया कि जितने एम्पायर्स के फ्रंटियर्स थे, बॉर्डरिंग इलाका जो भी था रोमन एम्पायर्स का, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया, वहाँ पे एक्स्ट्रा उसने मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया फॉर द डिफेंडिंग द रोमन एम्पायर फ्रॉम द आउटसाइड एग्रेशन.
बाहर की एग्रेशन से डिफेंस करने के लिए उसने दैट ओके। तो ये दिस वाज द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर मिलिट्री। और इसने सिविल, दूसरी बात कि जो मिलिट्री और सिविल सर्विसेज थे, मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस ये कंबाइंड रहता था। तो इसको इसने कंप्लीटली बाइफर्केट कर दिया, डिवाइड्स कर दिया मिलिट्री सर्विस। एंड मेजर फंक्शन ऑफ डायक्लिसियस वाज टू ग्रांट द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स। और इसने जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको ड्यूसेस कहा जाता था, ड्यूस कहा जाता था, दे वेयर गिवन and the now they were just given the और ये स्पेयर द मच पावर, उनको उसने बहुत पावर दिया, इनॉर्मस पावर ड्यूसेस गिवन। एंड ऐसे क्या हुआ कि दे स्टार्टेड इमर्जिंग एज द मोर पावरफुल ग्रुप इन द सोसाइटी। और इसी वजह से जो ये मिलिट्री ग्रुप था ये मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन गया। एंड मोर ओवर इसके आगे अगर देखा जाए तो नाउ इसने नाउ मिलिट्री डायक्लिसियंस इंट्रोड्यूस द मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम। इसने नया न्यू इसने कि मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम मीन्स द फोर्सबली मिलिट्री में अपॉइंट करना। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अनविलिंगली आप नहीं भी चाहते हैं लेकिन स्टेट ऑर्डर से आपको अपॉइंटमेंट, आपको मिलिट्री सर्विस देनी है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस प्रैक्टिस वाज प्रैक्टाइज इन इरानियन स्टेट, इरानियन एम्पायर में इसको प्रैक्टाइज किया जाता था, जहाँ पार्थियन और ससानियन इसको प्रैक्टाइज करते थे, फोर्सबली अपॉइंट किया जाता था। इसने भी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, आर्मी के नंबर्स को नंबर रिक्वायरमेंट्स को इसने क्या किया कि कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम से इसने स्टार्ट किया, फोर्सबली अपॉइंटेड। So this is the another step of the he contingents. Delegations expanded imperial bureaucracy by opening it to the middle class. इसने क्या किया कि जो imperial bureaucratic structure था, यानी जो bureaucrats थे, now one thing इसमें बहुत appreciating काम इसने किया कि इसमें bureaucrats में certain class के ही लोग आते थे, एलिट क्लास के जो बिलोंग करते थे, दे वेयर यूज्ड टू बी द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन डायक्लिसियंस ने क्या किया कि इन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ही अपॉइंटेड बिगिन टू टेक एंड ओपनड द डोर सर्विस फॉर लोकल जेंट्री के लिए भी, पेटी ट्रेडर्स के लिए भी, छोटे छोटे ट्रेडर्स भी आ सकते थे, अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए भी। और दिस क्लास had hitherto been excluded from the bureaucracy, और इस क्लास को ब्यूरोक्रेसी से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसको क्या किया ब्यूरोक्रेसी को और ये जनरलाइज किया और ये क्या किया और पॉपुलर लोगों को उसमें अपॉइंट कर। एंड नाउ इन दिस वे इसने ही गेव अप द प्रिटेंस दैट थ्योरेटिकली रोमन स्टेट वाज स्टिल ए रिपब्लिक। लेकिन अभी तक रोमन स्टेट रिपब्लिक था, अंडरस्टैंड। और ये रिपब्लिक एक्चुअल रिपब्लिक तो नहीं था, अंडर द प्रिटेंस ऑफ एक रिपब्लिक का केवल ढांचा स्ट्रक्चर था, एक कर्टेन दिया गया था, लेकिन उसने उसको ओवरथ्रो कर दिया। एंड फाइनली ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज ए डिवाइन मोनार्क। लास्ट में जिस चीज से लोग डर रहे थे, बहुत से मोनार्क्स, और उन्होंने प्रिसिपेट और कई तरह के टाइटल्स दिया, इसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि ही इज द डिवाइन ओरिजिन, ही इज ए जस्ट ओरिजिन, मोनार्क हैज द डिवाइन ओरिजिन, यानी कि मोनार्क को ईश्वर से मिला हुआ, गॉड से मिला हुआ पावर। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एंड मोनार्क एंड द टाइटल इसने किया डोमिनस, डोमिनस एट ए ड्यूस, इसने लास्ट में अपनी टाइटल ली, और डिवाइन लॉर्ड एंड द मास्टर। दैट्स व्हाई द लेटर रोमन एम्पायर विथ इट्स न्यू मोनार्किकल ट्रेडिशन वो कहने जस्ट इट कॉल्ड एज द डोमिनेट इन रोमन हिस्ट्री। अब उनको डोमिनेट कहा जाने लगा, उनका नाम ही एट द बिगिन टू बी द एड्रेस्ड लेटर मोनार्क्स, इसके बाद वो डोमिनेट कहे जाने लगे। तो एक नया इसने क्या किया कि पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम को, रिपब्लिकन सिस्टम को इसने
कंप्लीटली मोनार्कल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर। नेक्स्ट है वी सी दैट अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। अब इसके बाद एक सेकंड जो आते हैं जिसको डायोक्लेशियंस के आफ्टर नाउ बिकेम द एम्पेरर द कॉन्स्टेंटाइन। Constantine, he became the emperor of that, और now he constituted some of the changes introduced by, इसने क्या किया कि he just कुछ चेंजों को इंट्रोड्यूस बाय इसने कॉन्सोलिडेटेड किया, उसका जो चेंज किया था डायोक्लेशियंस उसने कुछ को कॉन्सोलिडेट किया, लेकिन सम ऑफ मोस्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स वेयर ही नाउ डिसमेंटल, उसको उसने खत्म कर दिया बिल्कुल। एंड मोर ओवर एबोलिश द सिस्टम, फोर एम्पेयर सिस्टम था उसको हटा दिया। नेक्स्ट 324 में क्या किया, एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर द होल एम्पायर एंड बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेट, और पूरी होल एम्पायर पर एलोन ये किंग बना, और एस्टेब्लिश्ड द हिज ओन ऑथोरिटी और इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू एंड डोमिनेशन द सोलाइट्स, इसने एक नया डोमिनेशन चलाया नाउ डिनोमिनेशंस, और ये उसका नाम पड़ा सोलाइट्स। दिस क्वाइन जो यह जो नया क्वाइन था, दिस क्वाइन कंटेन्ड 4.5 ग्राम्स एंड इट इज द वेरी मेड ऑफ द constituted of very pure gold and coins were minted on a very large scale, में इसको मिंट किया गया। it was the hugely circulated everywhere रोमन एम्पायर। अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट्स इनका था कॉन्स्टेंटाइन का बिल्डिंग ऑफ ए सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसने आप पे आगे पढ़िएगा 13th या 14th सेंचुरी में कि रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर्स का जो कैपिटल था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको बाइजेंटिनियम भी कहा जाता है, तो एज ए होल इसको बाइजेंटिनियन एम्पायर कहते हैं, और ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट को हम रोमन एम्पायर्स कहते हैं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो बाइजेंटिनियन एम्पायर जो बाइजेंटिनियम जो इलाका था एम्पायर कहा जाता था वाज कॉल्ड है, तो उसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल बना, और इस कॉन्स्टेंटिनोपल को उसने कंप्लीटली ये फॉर्म किया, ये कॉन्स्टेंटाइन, इसी के नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल वो स्टेबल। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, ये इस्तांबुल है। इट इज द now surrounded by the three rivers, three oceans, और ये और this is the very beautiful place इस्तांबुल, और established है, और ये this is the building achievements, और Constantinople Byzantine new city was surrounded by siege of the three sides, ये three sides से siege से surrounded है, सीज से, और बहुत ब्यूटीफुल है इस्तांबुल जो, और मेड द कैपिटल सिटी ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न इलाका है उसको, ईस्टर्न पार्ट को इसने इसको कैपिटल सीट बनाया, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल ये कहा जाने लगा, और कैपिटल सिटी, और मोर ओवर कंप्लीटेड प्रोसेस शिफ्टिंग द सीट ऑफ द ईस्ट, और यहाँ पे ईस्ट में सीट से चेंज किया। With this political role of city Roman came to an end. इसके बाद with this political role of the city of Rome came to an end. New capital required a new senate, और यहाँ पे एक नया senate, and the 4th century witnessed the rapid growth of the governing class, और यहाँ पे एक नई governing class है यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हुआ। monetary stability आई, और expanding population pushed the economy and growth of the added to the prosperity to the empire. Moreover, new methods of productions came to the grown in economic field में नए productions के methods, new productions methods, और amongst the new production prosperity new methods में production में क्या हुआ, new technology introduce किया गया, oil pressing में, glass factories, screw presses, multiple water mills came into the introduction. Yeah, these were the introduced here.
considerably investments were made in the रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स और ट्रेडिंग, और अधिक से अधिक स्टेट ने इन्वेस्ट किया रूरल इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर में, और इसके बाद फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उसमें इन्वेस्टमेंट्स किया गया फॉर गेटिंग द मोर एंड मोर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और और इसके बाद ट्रेड को और बुस्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड, इसमें ह्यूज अमाउंट में मनी को इन्वेस्ट किया गया। मोर ओवर, और ईस्ट ईस्ट से व्यापार करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन वाज फर्स्ट रूलर हु पुट इफेक्टिव चेक ऑन एट्रोसिटीज अगेंस्ट द क्रिश्चियन, और क्रिश्चियंस पर जो अत्याचार हो रहा था उस पर उसने, उनके एट्रोसिटी पर उसने कंट्रोल किया, और ही हिमसेल्फ एडॉप्टेड द क्रिश्चियनिटी जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपने मरने के बिफोर दैट। और मोर ओवर वर्थ मेंशन दैट पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर वेयर कंपैरेटिवली मोर प्रॉस्पर, और ये देखा गया कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बना कॉन्स्टेंटिनोपल विथ द कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, इट वाज द मोर prosperous areas and peoples were more, and a most best example can be found the Constantinople expanding population till the 6th century despite the impact of the plague or affecting, कई तरह के प्लेग डिजीज आए, स्प्रेड हुआ, इसके डिस्पाइट अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये काफ़ी फास्ट पॉपुलेशन और डेंस पॉपुलेशन वहाँ एस्टेब्लिश, तो इस तरह से वी सी दैट कि दिस रोमन एम्पायर में हम ये देखते हैं कि एक फास्ट ग्रोथ हुआ, एक चेंजेज आए लेटर द, अगर देखा जाए 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी में, और इसके कॉन्स्टेंटाइन के डेथ के बाद कुछ सक्सेसर हुए, जो बहुत से सक्सेसर हुए, लेकिन कुछ दे कैन बी द नेम्ड, जैसे वैलेंटिनियन, वैलेना, थियोसोडियस, important रूलर थे। After the death of Theodosius, Roman Empire came to be divided between his two sons, और इसके बाद रोमन एम्पायर को इसके 2 सन्स में डिवाइड कर दिया गया, रोमन एम्पायर्स को पूरे, होनोरियस और आर्केडियस, तो देयर वर 2 ब्रदर्स, इसके बीच में आर्केडियस रूल द ईस्ट, ईस्ट में आर्केडियस रूल करता था। आप जानते हैं ईस्ट का कैपिटल कहाँ था, कहाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड वेस्ट का रोम, तो वास्ट रोमन एम्पायर डिवाइडेड इन ईस्ट एंड वेस्ट। होनोरियस रूल्ड द वेस्ट विद द कैपिटल एट द रोम, अंडरस्टैंड। तो नाउ वी कैन सी दैट कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द Diocletian and Constantine, the Roman Empire became the very prosperous, and the major changes were brought about in this empires, and more अर्बन वेल्थ में अगर देखा जाए, वी हैव ऑलरेडी इन आवर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इजिप्ट रिवील्ड सोसाइटी ऑफ द डे वाज मोर प्रॉस्पर देन द अर्लियर। इजिप्ट की जो सोसाइटी थे, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये मिलता है कि वो बहुत प्रॉस्पर थे, और मनी और इकोनॉमी वाज द वाइडली सर्कुलेटेड, विलेज वाज वेरी गुड, गाँव के भी जो कंडीशंस थे अच्छे कहे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स में। रूरल प्रोडक्शन ब्रॉट गोल्ड ह्यूज क्वांटिटी, और गोल्ड जो प्रोडक्शंस होते थे वो रूरल प्रोडक्शन दैट फेच द मच गोल्ड फॉर द फार्मर्स, एंड द हिस्टोरियन कुछ कहते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि नियर ईस्टर्न कंट्रीज वेयर मोर डेवलप्ड एंड द मोर डेंसली सेटल्ड इन द 5th and 6th century compared to today's empire now garnered huge amount of the wealth in from taxes or from different area, जो इस रोमन एम्पायर को ह्यूज अमाउंट में नाउ वेल्थ आते थे बाय द टैक्सेस और बाय द अदर सोर्सेस। एंड फॉर एग्जांपल 6th सेंचुरी अगर देखा जाए, रेन ऑफ जस्टिनियन, द एम्पायर गॉट द 25 लाख सॉलिडली, कह सकते हैं अराउंड द 35,000 IBS ऑफ द गोल्ड फ्रॉम इजिप्ट ओनली, केवल इजिप्ट से आप देख सकते हैं कि कितना गोल्ड आता था।
अंडरस्टैंड। तो एम्पायर वाज वेरी प्रॉस्पर्स, इनकम बहुत हाई थी, वास्ट एम्पायर था, अंडरस्टैंड। और द प्रॉस्पेरिटी वाज, हालांकि कुछ गरीबी भी था, तो ऐसा नहीं है कि वो हर एवरी वन वाज द प्रॉस्पर और सेटिस्फाइड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द होल एम्पायर अगर देखा जाए कि दैट वाज, तो आज बच्चों आज जीते। अब अगली बार से मैं काउंट करूंगा कि आपके नंबर्स आप कितने बैठते हैं, अंडरस्टैंड, आपका बैठना जरूरी है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लुकिंग, तो इसलिए आप क्लास करिए और अदर्स जो टास्क हैं या होमवर्क है और सैटरडे को हो सकता है मैं आपको, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।